ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਕਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਫੁੱਲ। ਓਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੌਇਸ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 29 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੌਇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਕਰਾ ਖਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਸਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ। ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰਚੇ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ। ਬਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਾਡ ਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ नहीं होना। जो मैंने उन्हें बताया है वो उन्होंने लिखा नहीं है ऑपरेशन पुलिस वालों ने। ठीक है। तो उन्होंने लिख दिया जी फायर जमीन पे मारा है। ओके। लेकिन फायर उसने सीधा मेरे ऊपर किया था। मिसाल है कि हमने पैसा खा लिया, ठीक है, उसके बाद क्या मतलब आप जान से मार देंगे? ये मुझे आकर मोहसिन ने, पहले भी मैंने मोहसिन पे पर्चा करवाया था पंजाबी थिएटर में, ठीक है। उसने मेरे ऊपर गोली मतलब कि मेरे ऊपर असला निकाला था। अब आकर उसने मेरे ऊपर सीधा फायर किया है और ये देखे ये मुझे मारा है, ये मारा है और ये मारा है उसने मुझे। आते ही उसने मुझे कहा है कि मैं तुझे मार कर ही जाऊंगा यहाँ से। अब हम गलत लैंग्वेज किसी से इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बंदा आपको गालियां ही देगा ना। आगे से वो बंदा आपके लिए आएगा तो नहीं आपको देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं मुर्तज़ा भट्टी। नाजरीन, चंद रोज़ पहले एक थिएटर के अंदर स्टेज अदाकारा इकरा खान के उत्ते ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ हमला किया जाता है, तशद्दद ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਆਖਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ जी, ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਨ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸਹੀ। ਉਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਫੁੱਲ। ਓਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੌਇਸ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 29 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੌਇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਕਰਾ ਖਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਸਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ। ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰਚੇ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ। ਬਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਾਡ ਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ठीक है। मैं उस तो बाद एप्लीकेशन करवानी है सब ज़्यादा थाने से। ठीक है। मैं उन्होंने कहनी सर मेरी जान को खतरा है, मुझे ये इस तरह ये वॉइस आए हुए हैं, ये आप सुन लें तो आप एप्लीकेशन मेरी एक लिख दें ताकि मुझे एक ये मुझे मिल जाए कि तहफ़्फ़ुज़ है मेरे मतलब कि आप लोगों की तरफ से, तो मैं थिएटर ईजी जा सकती हूँ और अपने घर ईजी आ सकती हूँ। उन्होंने कहा मैडम आप बेफिक्र हो जाए, हमने लिख दिया है, आप अब जाएँ ईजी होकर। ठीक है। मैं वहाँ से सीधा थिएटर आती हूँ। थिएटर आने के बाद मेरी गाड़ी एंटर होती है। वो बंदा मेरे आने से मुझे पता चल रहा है 2 मिनट पहले वो बाहर बैठा होता है, ठीक है, पार्किंग में। और मेरी गाड़ी अभी एंटर होती है, मैं गाड़ी से नीचे अभी उतरने लगती है, वो बंदा पीछे से आके मुझे पकड़ता है बालों से। उसने मुझे थप्पड़ मारे हैं, गालियां दी हैं। उसके बाद उसने असला पकड़ा हुआ था, गन पकड़ी हुई थी। वो गन को उसने चैमड़ चढ़ाया है तो उसने मेरी तरफ सीधी की है। फिर वो एक बंदा आया हुआ था देखने के लिए ड्रामा ही हमारा, वो पीछे बैठा था, वो फौरी भाग कर आया है। उसने बोला यार क्या कर रहा है तू, औरत है लड़की है क्या कर रहा है। उसने उसको ना ऐसे किया तो उसका हाथ नीचे लगा तो वो नीचे लग गई है गोली, सीधा नीचे लग गया फैट। तो उसके बाद उस बंदे ने जब देखा है कि इसको कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है, उस बंदे ने फिर दोबारा कोशिश किया चैमड़ चढ़ाने की, लेकिन वो गोली फंस गई है।
ओके। मतलब कि अल्लाह ने मुझे रखना था, अल्लाह ने मुझे जिंदगी देनी थी, शुक्र अल्लाह पाक का। तो उसके बाद उस बंदे ने गालियां गलोच ये वो, जाहिर सी बात है मैंने तो अपनी जान बचानी थी ना किसी ना किसी तरह। मैं भागकर सीधा थिएटर के अंदर एंटर होती हूँ, तो पीछे वो बंदा मेरे ड्राइवर को भी मतलब कि धमकी देता, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे मैंने बोला था इसके साथ ना आई, इसके साथ ना ये करी वो करी। मेरा ड्राइवर भाग जाता है, वो जाहिर है गरीब बंदा, वो बेचारा क्या करे। वो भाग गया, उसके पीछे ये बाइक लेकर भाग गया, बाइक लेकर भाग गया, उसके पीछे भी गया है, सारा कुछ हुआ, उसको धमकियां ये वो चीजें, वो बेचारा निकल गया स्पीड में गाड़ी लेकर। उसके बाद फिर मैं थिएटर में ही होती हूँ, मतलब कि ये सारा सीन मेरे साथ हुआ। और ये मुझे आकर मोहसिन ने, पहले भी मैंने मोहसिन पे पर्चा करवाया था पंजाबी थिएटर में, ठीक है। उसने मेरे ऊपर गोली मतलब कि मेरे ऊपर असला निकाला था। अब आकर उसने मेरे ऊपर सीधा फायर किया है, और ये देखे ये मुझे मारा है, ये मारा है और ये मारा है उसने मुझे। आते ही उसने मुझे कहा है कि मैं तुझे मार कर ही जाऊँगा यहाँ से। फिर बाद में आकर अब मैंने मतलब कि पुलिस को मैं बुलाती हूँ, पुलिस आती है, पुलिस भी माशाल्लाह आई है कोई 20-25 मिनट के बाद ही। 15 आपने 15 मैंने कॉल किया है, तो 20 से 25 मिनट के बाद पुलिस आती है। तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ अपना सारा वाकया कि मेरे साथ ये हुआ है, तो सर मुझे इंसाफ चाहिए। तो अब आप लोगों ने यही लिखना जिसपे मुझे इंसाफ मिल सके। जो मैंने उन्हें बताया है वो उन्होंने लिखा नहीं है, ऑपरेशन पुलिस वालों ने। ठीक है। तो उन्होंने लिख दिया जी फायर जमीन पे मारा है, ओके। लेकिन फायर उसने सीधा मेरे ऊपर किया था। ठीक है। तो इस चीज से मैं मतलब कि मुतमिन नहीं हूँ। अच्छा मैडम जी, जैसे ही आपकी ये न्यूज़ चलती है, जी, सोशल जी। मीडिया पर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, जी, जी। और बहुत सारे लोग ये चीज़ें पूछ रहे हैं। ऑपरेशन पुलिस आपके साथ तावन नहीं कर रही आपके बकौल, ठीक जी। है, कि आपने जो बोला वो एफआईआर नहीं काटी गई, आपकी बिल्कुल मर्जी के मुताबिक एफआईआर नहीं है। नहीं है। अब हमें ये बताएं कि क्या उस बंदे के साथ, आपने जैसा बताया कि 1.5 साल पहले मेरा तल्लक बना, जी, जी, मतलब जान पहचान होगी उन हमारी जी। 1.5 साल में आपका क्या उसके साथ रिलेशनशिप रहा? नहीं, नहीं, रिलेशनशिप नहीं था तो उसने ये हरकत की है। अच्छा, मतलब कि वो चाह रहा था कि हो। ठीक है। मतलब हम मतलब कि उसने हमें बोला है, हम उसकी बातों में नहीं आए हैं। अब उसने कहा जी हम इसको डरा के ले आएंगे, वैसे तो वो आई नहीं है, ठीक तो हम है। डरा के ले आते हैं। अच्छा, आपको डरा कर ले आते हैं, ये उसका मकसद था। जी, जी। आपने उसके साथ कोई बाहर डेट वगैरह की, खाने नहीं, नहीं। शाने खाए? नहीं, नहीं, खाने-शाने ये वो चीज़ें मेरी मेरी तो पहली बात है, ये पूरी फील्ड को पता है, मेरी आदत ही नहीं है। खाने-शाने खाने की या किसी के साथ बाहर घूमने की, ये चीज़ें मेरी आदत ही नहीं है शुरू से ही। ठीक है। तो बस उसको यही गुस्सा था। यानी कि उसने गुस्से में इतना बड़ा कदम उठाया। जी, जी, गुस्से में ये कदम उठाया, मतलब गुस्सा भी है आपको, लेकिन आपकी अगर घर की भी कोई औरत होगी, आप उसके साथ ये नहीं करेंगे, जो आपने मेरे साथ आकर यहाँ पर थिएटर में कर दिया। मतलब हम थिएटर लाइन में काम करते हैं, ठीक है, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। मतलब हमारी ओनर नहीं है, कोई भी उठ के ये ठंड की रब मतलब कोई भी बंदा उठ के आ जाता है, हमें मार के तो चला जाए। मतलब हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारी कोई सहूलत नहीं है, हमें किसी से मतलब वो नहीं है कि हम डरने के बगैर अपना काम कर सकें आकर। तो हमें मतलब खौफ इतना मतलब वो कर देते हैं कि हम घर बैठ जाए। मतलब मेरे घर पे मेरी पूरी फैमिली है जो मेरे सर पे है, ठीक है। मैं मतलब एक अल्लाह पाक वसीला बनाता है अपने घर का किसी को, वो अल्लाह ने मुझे बनाया हुआ है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे घर का वसीला किसने बनना था? अच्छा मैडम, ये कोई पहला वाकया नहीं है थिएटर के अंदर, बहुत सारी माजी के अंदर अदाकाराओं रिकासों पर फायरिंग हुई है, जी। और कुछ तो ऐसी हैं जो अपनी जान की बाजी भी हार गई। जी, जी। इसके पीछे आप क्या समझती हैं? क्या जो आप उनसे पैसे वगैरह खाती हैं, जो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये पहले खाती रहती हैं उनको, जब दूसरे बंदे की तरफ जाती हैं तो उसको गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए फायरिंग करता है? नहीं सर, वो तो आपकी बात बिल्कुल राइट है, लेकिन देखें एक औरत है, अगर आप औरत के ऊपर इस तरह चल के आएँगे, अगर उसको आप जान से मारेंगे, तो वो आप में तो फिर इंसानियत ना हुई। फिर तो आप अपने लगता है फिर आप अपने घर की औरतों की भी इज़्ज़त नहीं करते हैं, जो बाहर की औरतों की नहीं कर सकते, तो आप तो अपने घर की औरतों की भी नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि पैसा खाना ये वो चीज़ें, चले हमने आप मिसाल है कि हमने पैसा खा लिया, ठीक है, उसके बाद क्या मतलब आप जान से मार देंगे? नहीं, आप क्या जान। गोली मार देंगे? अच्छा मैडम, यहाँ पे ये सवाल है, जैसे आपने कहा कि माँ बाप है, पीछे फैमिली है, जी। और ये भी सच है कि ये पहला और आखिरी वाकया नहीं है। जी। तो इसमें आप क्या समझती हैं कि हर बार जो मारने आता है
वही गलत है, लड़की का कोई कसूर नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं करती लड़के मतलब कोई कसूर नहीं है। लड़की का कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो ऐसे लोगों पे एतबार कर जाती है कि जो बाद में उस लड़की को ट्रड करें या धमकियां दें या जान से मारे। सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम ऐसे लोगों पे भरोसा कर जाते हैं। तो आपने कौन सा भरोसा किया जिसके बाद उसने आपको हमारा बोला? भरोसा ये था जी, हम तो यही सोचते थे कि ये हमारा एक अच्छा फैन है, ठीक है, हमारा ड्रामा देखता है, हमें मतलब कि क्लैप कर देता है, चले हमें थोड़ी मतलब कि हमें थोड़ा सा मतलब खुशी मिलती है कि यार नहीं हमारे लिए लोग आ रहे हैं, हमें देखने के लिए आ रहे हैं। एक हमें जाहिर सी बात है, हम आर्टिस्ट हैं, हमें क्लैप जो है ना, क्लैप हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हम कोई आपसे खींच के तो नहीं लेकर आ रहे, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं ले रहे आपसे पैसा। आपका दिल कर रहा है तो आप हमें दे रहे हैं ना, ठीक है, हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे आपसे, ठीक है। अगर आप हमें दे रहे हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप हमें धमकियां देने लग जाए, आप हमें जान से मारने की कोशिश कर लें। हमारी ये जॉब है, अगर हमें उनसे नहीं भी ठीक से बात करनी फिर भी हमें करनी पड़ती है, ठीक है। वो क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हम लोगों ने अपनी एक इज्जत बनाई हुई है अपने इस फील्ड में, ठीक है। वो इज्जत अब हम खराब तो नहीं कर सकते। अब हम गलत लैंग्वेज किसी से इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बंदा आपको गालियां ही देगा ना आगे से, वो बंदा आपके लिए आएगा तो नहीं आपको देखने के लिए। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि वो फन नहीं है कि जो आप सीटें लगवाएं, वो आर्टिस्ट ही नहीं है कि वो सीटें लगवाए, ठीक है। आपके फन की वजह से पब्लिक आनी चाहिए, आपका जो फन आपको आता है आपको वो दिखाना चाहिए पब्लिक को। अगर वो देखते हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, हमें काम अपना वैसे ही जारी रखना चाहिए। ये नहीं कि हम गंद करना शुरू कर दें या हम 2 नंबरी करना शुरू कर दें, कोई ऐसा काम करना शुरू कर दे, इसका ये मतलब नहीं होता। मैं ये समझती हूँ कि सीटें लगवाने वाला आर्टिस्ट नहीं होता, मेरी सोच में ये है। लेकिन आजकल ये रूल चल गया हुआ है कि जो लड़की सीटें लगवाएगी ना वो काम कर सकती है थिएटर में। अच्छा, लास्ट में आप क्या अदारों से अपील करना चाहती हैं मोहतरमा मैडम? जी मरियम जी, नवाज साहिबा मैं से क्या अपील करना बिल्कुल चाहती हैं मरियम आपके नवाज इंसाफ साहिबा में? से मैंने हमेशा पहले भी इंटरव्यू मैंने किया, मैंने उनसे यही बात किया है, मैंने उनसे यही अपील किया है कि प्लीज हमें सहूलत मतलब कि हमें इतनी तहफ़्फ़ुज़ दी जाए कि हम आज़ादी से अपना काम कर सकें, हम किसी से डरे ना, हम खौफ ना करें, किसी से खौफ करके हम अपने घर से ना निकले, हम डरने के बगैर डट के खड़े होकर अपना काम कर सकें। चाहे हम औरतें हैं लेकिन हम अपने घर से बाहर निकली हुई हैं, काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, एक हमारी ये भी जॉब ही है। लेकिन मेरी मरियम साहिबा आपसे अपील है, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, प्लीज़ आप मुझे इस ज़्यादती के मुझे इंसाफ दें, प्लीज़ मुझे इंसाफ दें। जी मैडम, बहुत मेहरबानी अपना कीमती वक्त देने का। नाजरीन, आप मैडम की बातें सुनी आपने सारी, और जिस बंदे ने इन पर अटैक किया उनके भी वॉइस आपने सुने, किस तरह वो धमकियां इनको दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। इसी के साथ मुझे और मैडम इकरा खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।